Hello everyone. Last time we started the DFT, discrete Fourier transform. We have seen what is the use of DFT. So DFT is generally used to obtain the digital frequency response from the analog frequency response. If the sequence x of n is given, if we take its DTFT, we are getting the analog frequency response, which cannot be processed by the digital system. So we'll sample this analog frequency response and obtain the digital frequency response. This digital frequency response so if you sample DTSP signal, then we'll get the DFT signal. And DFT represent the digital frequency response of given input sequence. Okay, so let us see the problem based on this DFT. Find the DFT of x of n is equal to 3 phi. So this is a 2-point DFT. The length of x of n is 2. We have to find out the DFT of x of n, 3 phi. So according to the definition of DFT of signal x of n is represented by capital X of k, and which is equal to summation of x of n into Wn raised to nk, where n is varies from 0 to n minus 1. This Wn we call as a Tweedle factor. Okay. For n equal to 2, this summation में यहाँ पे n equal to 0 रहेगा, and here it will be 1. So 0 to 1 रहेगा यहाँ पे. Small n is varies from 0 to 1. K is also varies from 0 to 1. Okay. Now to solve these summations, we'll use the matrix method. Okay. ये summation solves करने के लिए हम लोग matrix method use करते हैं. And this is a matrix method. How to obtain x of k using matrix method? So x of k using matrix method is equal to the Tweedle matrix, n by n Tweedle matrix multiplied by the input matrix. So Tweedle matrix and input matrix, ये दोनों matrix का अगर हम लोग multiplications किया तो हमें मिलेगा x of k. We are getting the x of k. Okay. So अभी ये जो Tweedle matrix है वो कैसे obtain करते हैं? It is basically Tweedle matrix the square matrix. ओके अगर इनपुट का लेंथ 2 रहेगा तो इट इज़ 2/2 मैट्रिक्स. इनपुट का लेंथ अगर 3 रहेगा तो इट इज़ 3/3 मैट्रिक्स. इनपुट का लेंथ 4 रहेगा तो इट इज़ 4/4 मैट्रिक्स. सो दिस ट्वीडल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n. एंड इनपुट मैट्रिक्स जो है इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, ओके, ऑफ n क्रॉस 1. सो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज x ऑफ k. k इज वेरीज फ्रॉम 0 1. सो k का वैल्यू 0 पुट किया तो x ऑफ 0 मिलेगा, k का वैल्यू 1 पुट किया तो x ऑफ 1 मिलेगा. ओके, तो x ऑफ k इज इक्वल टू दिस x ऑफ k मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इज ट्वीडल मैट्रिक्स एंड दिस इज इनपुट मैट्रिक्स. ट्वीडल मैट्रिक्स 2/2 ट्वीडल मैट्रिक्स है दिस इज. ओके, नाउ हाउ टू ऑब्टेन ट्वीडल मैट्रिक्स इज, तो बेसिकली इन ट्वीडल मैट्रिक्स ऑब्टेन करने के लिए ओके कि इट विल बी लाइक दिस. फर्स्ट रो जो रहेगा वो Wn रेस्ट टू 0 रहेगा. Wn रेस्ट टू 0, Wn रेस्ट टू 0, Wn रेस्ट टू 0, Wn रेस्ट टू 0 लाइक दिस. ओके, फर्स्ट कॉलम इज ऑल्सो Wn रेस्ट टू 0. ओके, सो लेट अस सपोज लेंथ n इज इक्वल टू 4 है. तो फर्स्ट कॉलम इज ऑल्सो Wn रेस्ट टू 0, Wn रेस्ट टू 0, Wn रेस्ट टू 0. ओके, then this is Wn with the power 1 2 3, Wn 1 2 3 like this. Okay, so Tweedle with the power 1 2 and 3. Then here Tweedle with the power of 2 4 and 6. Here Tweedle with the power 3 6 9, 3 6 9. ओके, ऐसा हो गया. और अगर एक रो रहता तो
WN raised to what it is 4 8 12 like this. Okay, मतलब दिस इज अ 2 का टेबल है, 2 4 6, ये 3 का टेबल 3 6 9, इधर 4 का टेबल 4 8 12 लाइक दिस एंड सो ऑन. Isn't it like this? Okay, so suppose length 3 है, n equal to 3, so it is Wn raised to 0, Wn raised to 0, Wn raised to 0, Wn raised to 0, Wn raised to 0. Here रहेगा Wn raised to 1, Wn raised to 2, Wn raised to 2, Wn raised to 4. Like this. This is a 3 by 3 Twiddle matrix, isn't it? Okay. अगर आपका वो लेंथ 2 है तो इतना ही रहेगा, लेंथ 2 है तो, isn't it? And Wn raised to 0 is always equal to 1. Okay. The first Twiddle is having the value 1 that we have seen last time, isn't it? So therefore, this is a 2 by 2 Twiddle matrix will be like this. Wn, n is here 2 है. So W2 raised to 0, W2 raised to 0. First row and first column is W2 raised to 0. And here W2 raised to 1. Like this. So this is a Twiddle matrix. And this is the input matrix. X of 0, X of 1. Column matrix. Input column matrix. X of 0 and X of 1. So X of k is a product of Twiddle matrix and input matrix. अभी ये Twiddle का वैल्यू कैसा निकालते हैं हम लोग, तो ये Twiddle सर्कल से निकालते हैं हम लोग. ओके, Twiddle सर्कल का जो सर्कमफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एंगल इट इज 2 पाई है. अभी लेंथ 2 है तो दिस 2 ट्वीडल रहेगा आपका. ओके, लेंथ 3 रहेगा तो ये सर्कमफरेंस पे 3 ट्वीडल रहेगा. लेंथ 4 है तो ये सर्कमफरेंस पे 4 ट्वीडल रहेगा. isn't it? Now this 2 pi जो है 2 pi by n. Okay, this will be the ट्वीडल जनरली का डिस्टेंस बिटवीन दी 2 ट्वीडल रहेगा. 2 pi by n is the distance between the 2 twiddle. Okay, so अभी n equal to 2 है तो what is the distance between 2 twiddle is 2 pi by 2. 2 pi by 2 मतलब it is pi. तो first twiddle is here, W2 raised to 0. Okay, having the value 1 at an angle 0. Okay, W2 raised to 1 having the value 1 at an angle minus pi. Obviously that is 1 at an angle minus pi is nothing but minus 1. Okay, last time we have seen कैसा ट्वीडल हम लोग निकाला था for n equal to 8. Okay, n equal to 8 के लिए ट्वीडल पोलर फॉर्म में कैसा ऑब्टेन किया था. ओके, ये यूनिट सर्कल है तो सॉफ्ट ट्वीडल का एम्पलीट्यूड पोलर फॉर्म में 1 रहेगा. ओके, अभी जैसा कि इधर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेट अस से दैट n इक्वल टू 4 है तो ये सर्कल है, ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. ओके, तो हाउ मच इज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट ट्वीडल. ये दो ट्वीडल में सेपरेशन कितना का एंगुलर सेपरेशन कितने का रहेगा, तो इट इज पाई बाई 2 का, isn't it? Because 2 pi is divided among 4, 2 pi by n, and it comes out to be pi by 2. मतलब 1 at an angle 0 रहेगा तो this is 1 at an angle pi by 2. Okay, this is 1 at an angle pi, this is 1 at an angle 3 pi by 2. ऐसा अगर जा रहे हैं आप लोग तो माइनस साइन लगेगा, बिकॉज ऐसा हम लोग जाते तो एंगल माइनस लेते हैं, ऐसा जाते तो एंगल प्लस लेते हैं, isn't it? Okay, so this is a ट्वीडल का वैल्यू हो गया. ओके, पोलर फॉर्म में. उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो 1 रहेगा. ये 1 at angle minus pi by 2 is nothing but minus j, 1 at angle minus pi is nothing but minus 1, and 1 at angle minus 3 pi by 2 is nothing but j, like this. So 1 minus j minus 1 j, like this ऐसा, isn't it? like this. मतलब पोलर फॉर्म में पहले उसका वैल्यू ऑब्टेन करना. पोलर फॉर्म में सबका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा ट्वीडल का, एंड एंगल कितने का रहेगा तो 2 pi डिवाइड बाय n. तो यू आर गेटिंग दी एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दी एडजेसेंट ट्वीडल. एडजेसेंट ट्वीडल में कितने का सेपरेशन रहेगा. ओके, तो हियर देयरफॉर n इक्वल टू 2 के लिए 2 ही ट्वीडल रहेगा. एक ट्वीडल इधर रहेगा, दूसरा ट्वीडल पाई बाई 2 डिस्टेंस पे रहेगा. तो पहला ट्वीडल इधर है W2 रेस टू 0 जिसका वैल्यू 1 टर्निंग 0. दूसरा ट्वीडल रहेगा पाई बाई 2 डिस्टेंस में, एंड इसका वैल्यू रहेगा 1 एट एन एंगल माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस 1. ये डायरेक्शन में ट्वीडल पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव रहता है, ये डायरेक्शन में ट्वीडल का पावर नेगेटिव रहेगा, जो कि हम लोग लास्ट टाइम देखा था. ओके, मतलब इधर Wn रेस टू 1, Wn रेस टू 2, Wn रेस टू 3, Wn रेस टू 4 ऐसा रहेगा.
ये डायरेक्शन से आते तो Wn⁻⁻1, Wn⁻², Wn⁻3 ऐसा रहेगा, पावर माइनस रहेगा, isn't it? Like this. Okay, so therefore W2, this first row and first column तो 1 1 है, because W2⁻0 is 1 1, W2⁻1 is -1. ये वैल्यू पुट की है. इनपुट इज 3 and 5. सो क्रॉस, अभी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है. 3 + 5 8, 3 - 5 -2, like this. This is a DFT of this input sequence. Okay. Then let us start this another problem. Find the DFT of x of n is equal to 1 2 3. Now the length is 3, n equal to 3, and therefore formula लिखा DFT का, x of k is equal to summation of x of n Wn⁻n_k, and it is x of k is equal to the product of Tweedle matrix and input matrix. Tweedle matrix is now 3 by 3 square matrix. Okay, so first row, first column, W3⁻0, W3⁻1, W3⁻2, W3⁻2, W3⁻4, 1 2 3 2 4 6, like this. Okay. अभी इसका ट्वीडल का वैल्यू कैसा रहेगा? तो ये W3⁻0, Wn⁻0 का वैल्यू हमेशा 1, तो ये सब 1 रहेगा. इनका वैल्यू निकालना हम लोग. तो ये ट्वीडल का वैल्यू कैसा निकालते हैं? तो सर्कल से निकालते हैं, ट्वीडल सर्कल से निकालते हैं हम लोग. दिस इज ए ट्वीडल सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई है. इट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट. तो एक पार्ट कितने का रहेगा? ओके, ये सर्कमफ्रेंस 2 पाई का है. इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइड बाय 3. हाउ मच इट इज? तो 2 पाई डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट 360 डिवाइड बाय 3. 360 डिवाइड बाय 3 इज नथिंग बट 120, isn't it? 120 is nothing but 2 pi by 3. Okay, so 2 pi by 3 का डिफरेंस रहेगा एडजेसेंट ट्वीडल में. तो पहला ट्वीडल ये रहेगा 1 at an angle 0 पोलर फॉर्म में. दूसरा ट्वीडल रहेगा W3⁻1, ये 120 डिग्री अपार्ट रहेगा यहाँ से, जिसका वैल्यू रहेगा 1 at an angle -2 pi by 3. pi by 3 मतलब 60 into 2 मतलब 180, सॉरी 120. ओके, एंड ये डायरेक्शन में इट इज माइनस एंगल रहेगा, इज इट? सो पोलर फॉर्म में इसका वैल्यू रहेगा 1 at an angle -2 pi by 3. और आगे 120 डिग्री जाते तो नेक्स्ट ट्वीडल मिलेगा W3⁻2 मिलेगा, एंड इसका पोलर फॉर्म में वैल्यू रहेगा 1 at an angle -4 pi by 3. अभी ये पोलर का रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया तो ऐसा हो जाएगा. ओके, -0.5 -0.86 ये. इसको भी पोलर का रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया, ये हो गया -0.5 + 86 ये, एंड फिर वो वैल्यू इधर पुट किया हम लोगों ने. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 1, W3⁻1 का वैल्यू है आप लोग का -0.5 -0.86 J. W3⁻2 का वैल्यू है, ये है -0.5 + 0.68 J. ओके, देन W3⁻2 इज ये है. W3⁻4 क्या रहेगा? W3⁻4 है क्या इधर? तो है, ये W3⁻2 है, ये W3⁻3, ये W3⁻4. इट इज पीरियोडिक इन नेचर. ट्वीडल्स आर पीरियोडिक इन नेचर. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, like this. It is periodic in nature. So W3⁻0, W3⁻1, W3⁻2, W3⁻3, W3⁻4. W3⁻4 ये हो गया, जो कि -0.5 -0.86 J, जो कि ये लिखा हम लोगों ने, isn't it? And this is the input matrix. अब इसका मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का. So दो मैट्रिक्स का मल्टी, फर्स्ट वन इज 6, देन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. ये कैलसी पे करते हैं आप लोग डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स मोड में रख के कैलसी पे करने का. ओके, कॉम्प्लेक्स मोड में रख के कैलसी पे ऐसा डायरेक्टली एंट्री किया, दिस इंटू दिस 1 हो गया. ओके, प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में ये लिख दिया. ओके, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में ये लिख दिया, इक्वल टू किया, तो ये आ जाएगा आप लोग का कॉम्प्लेक्स मोड में, isn't it? So this is the final answer. Okay, thank you.